Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are well. Today we are going to talk about China's newly acquired space capability with hypersonic missile that is capable of carrying nuclear weapons. You all have heard कि पिछले कुछ दिनों में ये न्यूज़ बहुत चली थी कि चाइना ने जो है अपना न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया है, वो न्यूक्लियर मिसाइल जो कि कैपेबल है टू कैरी द न्यूक्लियर वेपन्स. एंड दिस न्यूज़ हैज़ टुक होल वर्ल्ड बाय सरप्राइज एंड स्पेशली द यूएस इंटेलिजेंस, क्योंकि यूएस ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना जो है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा सकता है, बिकॉज दे थॉट कि चाइना जो है इज़ बिजी इन डेवलपिंग कन्वेंशनल वेपन्स, जबकि चाइना हैज़ अक्वायर्ड दिस हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी इवन बिफोर यूएस. सो ये जो न्यूज़ आजकल चल रही थी और अभी भी चल रही है, इट्स स्टिल इन द न्यूज़. सो इट्स बेसिकली अबाउट चाइनाज न्यू स्पेस कैपेबिलिटी विद hypersonic missile that obviously astounded the US intelligence. They were caught off guard. And it was reported that it was the Chinese medium-range ballistic missile with hypersonic glide vehicle. So let's first understand what are hypersonic glide vehicles. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइपरसोनिक व्हीकल किसको कहते हैं. हाइपरसोनिक कोई भी ऐसा मिसाइल या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि साउंड की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करे, जो साउंड दैट ट्रेवल्स फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड इज़ द हाइपरसोनिक मिसाइल और द हाइपरसोनिक डिवाइस और ऑब्जेक्ट. और इसकी स्पीड जो है मेंशन की जाती है फ्रॉम Mach 5 to Mach 10. Mach 5 is, you can say that it's basically a unit that measures the speed of any object in relation to the speed of sound. मतलब कि अगर किसी मिसाइल की जो स्पीड है it is Mach 5, that means कि it travels faster 5 times faster than the speed of sound. इसी तरह अगर किसी की स्पीड Mach 8 है, that means कि it travels 8 times faster than the speed of sound. So basically Mach is, you can say that it is a unit that tells the speed of any object or vehicle or missile in relation to the speed of sound. और hypersonic missile या hypersonic weapon वो होता है जो कि that travels faster than the speed of sound. And जो Mach 5 से लेकर Mach 10 तक जो है ये रेंज बताई जाती है hypersonic vehicle या फिर hypersonic missile की जो स्पीड होती है that ranges from Mach 5 to Mach 10. So if we talk about what are hypersonic glide vehicles, तो जो glide vehicles होते हैं these are basically the type of hypersonic weapons that are launched into space on a rocket. And recently, reportedly, China tested a hypersonic glide vehicle that is capable of carrying nuclear weapon. वैसे तो already 2019 में China has already unveiled its hypersonic missile DF-17, but this is first time ever that China has tested a nuclear capable hypersonic missile, which is why they have surprised the whole world. And now let us know what makes hypersonic weapons or hypersonic missile deadly or dangerous. So some of the characteristics of the hypersonic weapons are that number one is that the hypersonic weapons or the hypersonic missiles travel at a speed above Mach 5. Generally क्या होता है कि speed of sound is Mach 1, but hypersonic weapons travel 5 times faster than the speed of sound, that is at Mach 5. So this is what makes them dangerous. Their speed is what makes them difficult to be detected. And that is why hypersonic missiles are deadlier than the cruise missiles and the ballistic missiles. जबकि अगर हम ballistic missile की बात करें तो ballistic missiles can be easily detected by the radar. Or also they can be easily detected by satellites because the ballistic missiles go to a higher Earth orbit before reaching the target, which means कि they follow a standard parabolic trajectory. मतलब कि जो ballistic missiles हैं they follow a standard parabolic trajectory. They go to a high Earth orbit before reaching the target. So this high trajectory makes them easier to be detected by radar or the satellite system. जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल की जो लो ऑर्बिट में ट्रैवल करता है दूसरा, इट ट्रैवल्स 5 टाइम्स ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड, विच मेक्स देम डिफिकल्ट टू बी डिटेक्टेड एंड इंटरसेप्टेड, और इसीलिए दे आर मच मोर डेडलियर दैन द बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स. And if we specifically talk about the China's hypersonic missile, then based on the speculations, we have received these facts that the China's hypersonic missile travels at speed about 6,200 km per hour, and it comes under range of Mach 5. तो जैसा कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेंज होती है दैट इज़ फ्रॉम Mach 5 to Mach 8 to 10. तो चाइना की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी रेंज है Mach 5 तक. वैसे ये टेक्नोलॉजी सिर्फ चाइना के पास नहीं है, रशिया भी क्लेम करता है कि दैट इट हैज़ टेस्टेड द हाइपरसोनिक मिसाइल्स. जैसे कि अकॉर्डिंग टू द रशियन मीडिया रिपोर्ट्स, द रशियन मिलिट्री फर्स्ट टेस्ट फायर्ड द Zircon उनका हाइपरसोनिक मिसाइल है. दे टेस्टेड Zircon in October 2020, and of course the media reports claim that Zircon is the fastest hypersonic missile, having speed more than 8,000 km per hour, and it is of Mach 8 hypersonic missile. So you can say that according to Russian media जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पेश की हैं उनके मुताबिक जो है सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है वो रशिया के पास है, दैट इज़ ऑफ Mach 8. जबकि जो रिसेंटली चाइना ने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है तो बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन दैट इज़ ऑफ Mach 5. इसके अलावा जो चाइनीज़ हाइपरसोनिक मिसाइल की खास बात है
वो ये है कि द चाइनीज़ हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर न्यूक्लियर केपेबल, मतलब कि दे आर केपेबल टू कैरी न्यूक्लियर वेपन्स एंड ऑल्सो दे हैव द कैपेबिलिटी टू ऑर्बिट द ग्लोब बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स द टारगेट। इसलिए उसकी जो स्पीड है दैट इज़ अबाउट 6200 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि अगर हम जनरली देखें कि जो अर्थ का डायमीटर है, द एवरेज डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 12,756 किलोमीटर, और जो चाइना का हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी स्पीड है 6200 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि सिर्फ 2 आवर्स के अंदर अंदर इट कैन ऑर्बिट द एंटायर ग्लोब। सो ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू द टॉपिक। सो द न्यूज़ इज़ कि China acquired new space capability with hypersonic missile, and that has surprised the US intelligence. So there is this news that China tested a nuclear-capable hypersonic missile in August that circled the globe before speeding towards its target. And it is also being said that Chinese military launched a rocket that carried a hypersonic glide vehicle, which flew through low orbit space before it missed its target about 2 miles. That means कि चाइना ने जो ये न्यूज़ में आ रहा है, ये फाइनेंशियल टाइम्स की न्यूज़ है, उनकी रिपोर्ट है। उन्होंने ये रिवील किया है कि चाइना ने अगस्त में जो है अपना हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया था, जिसे उन्होंने छुपाए रखा। तो बेसिकली अगस्त के मंथ में ही चाइना ने ये टेस्ट कर लिया था। जो चाइनीज़ मिलिट्री है उसने रॉकेट लॉन्च किया था दैट कैरीड द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिसने लो ऑर्बिट स्पेस में ट्रैवल किया एंड उसके बाद इट मूव टुवर्ड्स इट्स टारगेट बट इट मिस्ड इट्स टारगेट। सो बेसिकली इट वाज अनसक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द हाइपरसोनिक मिसाइल बाय चाइना। Although it was unsuccessful, but at least China has told the world that they are on the verge of acquiring hypersonic missile technology, which is obviously very dangerous. और ये dangerous इसलिए है क्योंकि दुनिया में कहीं भी ऐसा डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके, which is why it is very dangerous and alarming for the enemies of China that mainly include US, UK, and Japan and India and also other countries that are in conflict with China over South China Sea. सो इस न्यूज़ के हवाले से ये बहुत कहा जा रहा था कि जो US इंटेलिजेंस है उसको भी इसके बारे में बिल्कुल खबर नहीं हुई कि चाइना ने इतना बड़ा हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर लिया। सो इट वाज बीइंग सेड दैट दिस अटेम्प्ट बाय चाइनीज़ मिलिट्री हैज़ टुक द वर्ल्ड बाय सरप्राइज, स्पेशली US इंटेलिजेंस, बिकॉज दे हैड नॉट एक्सपेक्टेड चाइना वुड बी एबल टू डेवलप द हाइपरसोनिक वेपन्स। सो द आइडिया इज़ कि जो चीन ने अगस्त में एक जौहरी सलाहियत यानी न्यूक्लियर केपेबल के हामिल हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया, जिसने अपने हदफ को यानी टारगेट की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ने से पहले दुनिया का चक्कर लगाया, मतलब कि इट सर्कल्ड द ग्लोब बिफोर स्पीडिंग टुवर्ड्स इट्स टारगेट। Another important thing is that the China's hypersonic glide vehicle flew through low orbit, and thirdly that it has got US intelligence off guard because China has extraordinarily advanced in developing hypersonic weapons, which USA had not expected obviously. और ये अमेरिका के लिए ज़ाहिरी सी बात है, एक बहुत ही तशवीशनाक बात है, and US is obviously very concerned. Now here it is pertinent to mention that USA, Russia and China are all developing hypersonic weapons, including glide vehicles that are launched into space on a rocket. But other than these 3 countries, at least 5 more countries are also working on the hypersonic technology. जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया है और UK है, तो ये countries भी, और नॉर्थ कोरिया ने भी claim किया है that they have tested a hypersonic missile. So these countries are also involved in acquiring hypersonic technology. और अगर हम चाइना की बात करें कि चाइना का इस न्यूज़ पे क्या रिस्पॉन्स था, तो फॉर नाउ ऑब्वियसली चाइना हैज़ डिनाइड एनी सच रिपोर्ट्स दैट इट टेस्टेड अ न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल अर्लियर दिस ईयर। इंस्टेड दे हायर ऑफिशियल्स क्लेम दैट इट वाज कैरिंग आउट अ स्पेसक्राफ्ट चेक फोकस्ड ऑन रीयूजेबल टेक्नोलॉजी। सो चाइना ने जो है इस न्यूज़ को डिनाई कर दिया है कि चाइना ने कोई हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। सो उन्होंने कहा कि दे वर टेस्टिंग अ स्पेसक्राफ्ट चेक फोकस्ड ऑन रीयूजेबल टेक्नोलॉजी। लेकिन दुनिया को बेसिकली चाइना पे शक उस टाइम हुआ कि जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है वो कैरीड बाय अ लॉन्ग मार्च रॉकेट, और जब भी ऐसे लॉन्ग मार्च रॉकेट्स का लॉन्च किया जाता है चाइना की तरफ से तो उसको हमेशा चाइना अनाउंस करता है, बट द ऑगस्ट लॉन्च वाज केप्ट अंडर रैप्स व्हिच गिव राइज टू सस्पिशंस। सो आई थिंक जुलाई में उन्होंने अपना 77th कोई लॉन्च किया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगस्त में उन्होंने लॉन्च किया, दैट वाज केप्ट हिडन। उसके बाद फिर सितंबर में आई थिंक एक और लॉन्च किया था, दैट वाज अनाउंस्ड एज 79th लॉन्च। दैट मीन्स कि जो 78 था वो उन्होंने हिडन रखा था। सो दिस वाज द रीज़न कि दुनिया को ये शक हुआ कि चाइना ने ज़रूर कोई ऐसा टेस्ट किया है दैट दे डू नॉट वांट टू रिवील नाउ। एंड नाउ इफ वी कंपेयर द स्पेशलिटीज़ ऑफ द हाइपरसोनिक, if we talk about the specialty of the hypersonic missile and compare them with the ballistic missile, then we come to know that hypersonic missiles can deliver nuclear weapons, ठीक है, and they can fly at speed 5 times more than the speed of sound. उसके अलावा most importantly hypersonic missile flies on a low trajectory in atmosphere, which gives it the ability to reach its target more quickly. मतलब कि obviously जितना लो ट्रेजेक्ट्री पे ट्रैवल करेगा उतना ही जल्दी अपने टारगेट पे रीच करेगा, ठीक है। और इसकी एक बहुत खास बात ये भी है कि दैट इट कैन बी मैनूवर्ड, मीन्स कि उसकी जो भी कमांड हो उसको इन द एयर इन द स्पेस चेंज भी किया जा सकता है, इट कैन बी मैनूवर्ड।
ठीक है। नॉर्मली जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं उनको जो टारगेट दिया जाता है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन स्पेस, लेकिन इनके टारगेट को स्पेस में भी चेंज किया जा सकता है, इनकी कमांड को तब्दील किया जा सकता है इन स्पेस एज वेल। तो यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। इसके अलावा अगर हम इनके कंपैरिजन में बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल्स कैन ऑल्सो डिलीवर न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, जैसा कि हाइपरसोनिक मिसाइल की भी ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स फ्लाई हाई इनटू स्पेस टू रीच देयर टारगेट्स, मतलब वो एक स्टैंडर्ड पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए अपने टारगेट को रीच करते हैं, ठीक है। सो दे हैव टू फ्लाई हाई इनटू द स्पेस, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल जो होता है वो लो ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं दे कैन नॉट बी मैनूवर्ड, उनको जो बस एक बार कमांड दे दी गई तो उसको उसकी कमांड वही रहेगी एट द एंड, इट कैन नॉट बी मैनूवर्ड, उसकी कमांड को चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल को एक नई कमांड दी जा सकती है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हाइपरसोनिक मिसाइल एंड दी कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल। नाउ अब यहाँ पर इस इवेंट की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम करंट अफेयर्स में या इंटरनेशनल अफेयर्स में किसी भी इवेंट को देखते हैं ना, किसी भी इवेंट को अनफोल्ड होते देखते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है दैट इज़ टाइमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट और द टाइमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर अकरेंस। उसको हमें हमेशा जहन में रखना चाहिए कि ये चीज़ अब हुई है तो इसके आगे पीछे कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और कौन कौन सी चीज़ों को वो आगे पीछे की कौन कौन सी चीज़ों को वो इम्पैक्ट कर रहा है। सो दैट मैटर्स अलॉट। इसलिए जब भी आप करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल अफेयर्स की टॉपिक्स को पढ़ा करें तो हमेशा जो है इवेंट्स की टाइमिंग्स पर ज़रूर गौर किया करें, ठीक है। जैसा कि अब चाइना ने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है, जिसे करंटली चाइना ने तो डिनाई किया है, बट द वर्ल्ड इज़ क्वाइट श्योर कि चाइना हैज़ टेस्टेड इट्स हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। तो इस इवेंट की जो है टाइमिंग बहुत मैटर करती है, बिकॉज एट दिस न्यूज़ हैज़ कम आउट एट अ टाइम व्हेन रिसेंटली यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया साइंड ऑकस अलायंस, ऑकस एग्रीमेंट, जिस पर ऑलरेडी जो चाइना ने कहा था कि वेस्ट शुड गेट रिड ऑफ द कोल्ड वॉर मेंटेलिटी, इस तरह की स्टेटमेंट्स दिए थे एंड बहुत क्रिटिसाइज़ किया था ऑकस अलायंस की इस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है। सो और इसके अलावा जो टेंशन्स बढ़ रहे हैं ओवर साउथ चाइना सी, यूएस और चाइना के बीच में टेंशन्स बढ़ रहे हैं ओवर साउथ चाइना सी पे, ठीक है। इसके अलावा जो ताइवान का इशू उठ रहा है आजकल, ताइवान स्ट्रेट का, which has also led to escalation of the US-China tensions। तो इस टाइमिंग के दौरान जो है चाइना ने अपना ये न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। सो analysts believe and it can be said it could be deemed as a warning call for US from China which accused Washington of being overly hostile, जैसा कि उसने क्वाड बनाया, ठीक है, ऑकस अलायंस बनाया। इसके अलावा वो चाइना के अगेंस्ट ताइवानीज़ को सपोर्ट कर रहा है, मिलिट्री हिडन मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। सो हर तरह से वो चाइना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हर तरह से अलायंसेस बना रहा है ताकि चाइना को कंटेन कर सके, ठीक है। इसके अलावा जो साउथ चाइना सी में उसके राइवल्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये सारे स्टेप्स ले रहा है जिसको चाइना हैज़ अक्यूज्ड वाशिंगटन ऑफ बीइंग ओवरली हॉस्टाइल। इन तमाम स्टेप्स को देखकर यूएस के जो पॉलिसी है चाइना की तरफ, उसको देखते हुए चाइना हैज़ अक्यूज्ड वाशिंगटन ऑफ बीइंग ओवरली हॉस्टाइल। मतलब कि मोस्ट रिसेंटली जैसे अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव बढ़ा है, जैसे कि बाइडन इंतजामिया ने बीजिंग पर सख्त रवैया अख्तियार किया है, जैसे कि क्वाड बनाया, ठीक है, ऑकस अलायंस बनाया, ठीक है, मिलिट्री सपोर्ट दी ताइवान को जो कि अलेज्ड है, जो कि हिडन है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों की सूरत में हमें नज़र आ रहा है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी क्या है टुवर्ड्स चाइना, विच इज़ वेरी ऑब्वियसली वेरी हॉस्टाइल। तो इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के बैकड्रॉप में ये तमाम इवेंट्स हैं जो कि शो करते हैं कि देयर इज़ एस्केलेशन ऑफ टेंशंस बिटवीन चाइना एंड यूएस, एंड इट इज़ बीइंग सेड दैट एट दिस टाइम ऑफ द ईयर चाइना हैज़ टेस्टेड दिस हाइपरसोनिक मिसाइल टू गिव अ वार्निंग कॉल टू यूएस टू स्टे एट बे टू स्टॉप इंटरवीनिंग इन चाइनाज मैटर्स। और स्पेशली जैसे शी जिनपिंग ने इन अ रिसेंट एड्रेस ही सेड दैट ही एक्सटेंड बीजिंग सपोर्ट फॉर रीयूनिफिकेशन विद ताइवान स्ट्रेट। सो शी जिनपिंग के ऐसे बयानात आए हैं इस टाइम में चाइना का इस तरह का टेस्ट करना, ये शो करता है कि ये चाइना का अटैम्प्ट है यूएस को प्रेशराइज करने का, यूएस के खिलाफ डेटरेंस शो करने का, कि वी हैव अ वेरी पावरफुल वेपन अगेंस्ट यू, सो यू बेटर कीप अवे फ्रॉम चाइना, फ्रॉम इंटरवीनिंग इन मैटर्स रिलेटेड टू चाइना एंड लेट चाइना डू वट एवर इट वॉन्ट्स टू डू। सो ये इंपॉर्टेंस थी इस टाइमिंग की। सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट यूएसए's कंसर्न्स, यूएस के क्या कंसर्न्स हैं या यूएस पर इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी चाइना के इस न्यू टेस्ट की, तो इस बात का हमें यहीं से अंदाज़ा लग सकता है कि जैसे कि टेलर फ्रेवल, एन एक्सपर्ट ऑन चाइनीज़ न्यूक्लियर वेपन्स पॉलिसी, said that a hypersonic light vehicle armed with a nuclear warhead would help China negate USA's missile defense systems which are designed to destroy incoming ballistic missiles। ये स्टेटमेंट दी गई थी टेलर फ्रेवल की तरफ से, जो कि एक एक्सपर्ट हैं चाइनीज़ न्यूक्लियर वेपन्स पॉलिसी की। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई कि अगर चाइना ने वाकई ऐसे वेपन्स एक्वायर कर लिए हैं, हाइपरसोनिक न्यूक्लियर केपेबल वेपन एक्वायर कर लिए हैं, तो दैट मीन्स कि चाइना हैज़ एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू निगेट यूएसए's मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, क्योंकि करंटली यूएसए के पास हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। इट हैज़ सिस्टम्स टू इंटरसेप्ट क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स,
or rockets, but currently USA does not have any system to intercept the hypersonic missiles. So, or that's because hypersonic light vehicles fly at lower trajectories and their target command can be changed, which makes them hard to track and destroy. So this shows us that obviously this will make US concerned. So we can say that it is a form of warning from China to US as to desist from intervening in China-Taiwan issue, because as Beijing continues to build up its conventional military forces in the South China Sea and also engages in military activity near Taiwan Strait, and of course US would never want Taiwan's takeover by China. So naturally, it is very likely that US would intervene if China attempts forceful unification of Taiwan with China. Because also under Sino-American Mutual Defense Treaty, US is bound to defend Taiwan in case of any attack. So the analysts see this test as an attempt by China to keep US at bay if conflict breaks out, because now US has to keep in mind other factors as well before getting into fight against China. And one major factor is that China has acquired hypersonic missile space capability and US has no defense system against it. So obviously if China develops more hypersonic missiles and also attempts to deploy this technology, then it would be very difficult for US to intercept those hypersonic missiles. So the idea is कि जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल का इस टाइम टेस्ट होना ये एक किस्म की वार्निंग है चाइना की तरफ से टू यूएसए, ताकि यूएस को एक तरह की वार्निंग दी जाए कि वो चाइना के मामलात से दूर रहे, जैसा कि करंटली बीजिंग जो है अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्सेस को साउथ चाइना सी में बढ़ा रहा है, ठीक है। इसके अलावा वो एक मिलिट्री एक्टिविटी को अपनी इन्हेंस कर रहा है इन दी ताइवान स्ट्रेट। तो जैसा कि ऑब्वियसली वो एक डेमोक्रेटिक सेल्फ क्लेम डेमोक्रेटिक स्टेट है ताइवान, ठीक है, और जिसे चाइना अपना एक रिबेल प्रोविंस कहा, ब्रेक अवे प्रोविंस कहता है। एंड नाउ चाइना इंटेंस के वो इस ताइवान को रीयूनाइट कर ले चाइना के साथ, मेन चाइना के साथ। सो अगर चाइना ने फोर्सफुल तरीके से ये करना चाहा तो नेचुरली क्या होगा कि यूएस इंटरवीन करेगा, बिकॉज अंडर साइनो अमेरिकन म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी यूएस इज बाउंड टू डिफेंड ताइवान इन केस ऑफ एनी अटैक। और अगर चाइना फोर्सफुल यूनिफिकेशन ऑफ ताइवान करता है तो ऑब्वियसली दिस विल नेचुरली कंपेल यूएस टू इंटरवीन, ठीक है। बट नाउ यूएस हैज़ टू कीप अदर फैक्टर्स इन माइंड एज वेल। सो चाइना से उलझने से पहले यूएस को अब ये भी सोचना कि अब चाइना के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसको रोकने के लिए, जिसके अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए यूएस के पास कोई सिस्टम नहीं है। सो ऑब्वियसली यूएस जो है चाइना के साथ उलझने से पहले 100 बार सोचेगा। और इसके अलावा यूएस की कंसर्न्स हमें यहाँ से भी शो होते हैं कि जैसे रिपब्लिकन मेंबर ऑफ हाउस ऑफ आर्म्ड सर्विसेज कमेटी सेड कि द टेस्ट शुड सर्व एज अ कॉल टू एक्शन। इसके अलावा ये भी कहा गया कि द पीपल्स लिबरेशन आर्मी नाउ हैज़ एन इंक्रीजिंगली credible capability to undermine our missile defense system and threaten the American homeland with both conventional and nuclear strikes. और इसके अलावा जो यूएस के एयरफोर्स सेक्रेटरी हैं फ्रैंक कैंडल सेड कि चाइना हैज़ मेड ह्यूज एडवांसेस इंक्लूडिंग द पोटेंशियल फॉर ग्लोबल स्ट्राइक्स फ्रॉम स्पेस। ऑलराइट, और अगर हम पेंटागन के रिस्पॉन्स की बात करें तो पेंटागन refrained from commenting on the report but expressed concern about China, saying that we have made clear our concerns about the military capabilities China continues to pursue, capabilities that only increase tensions in the region and beyond. Pentagon regarded China as a biggest challenge, saying we hold China as our number one facing challenge. और ये यूएस का कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि चाइना इज़ नॉट बाउंड बाय एनी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, सो जिसकी वजह से वो अपने विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स जो है अपने न्यूक्लियर या दूसरे वेपन्स को या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करता जा रहा है विदाउट एनी रिस्ट्रेंट। So also then, according to Congressional Research Services report, China has been aggressively developing the technology, seeing it as crucial to defend against US gains in hypersonic and other technologies. So जो US का एक इंस्टीट्यूट है Congressional Research Services जिसे CRS भी कहा जाता है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि चाइना जो है तेज़ी से ये टेक्नोलॉजीज एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके अगेंस्ट US, ठीक है। इसके अलावा another concern from US is that these are the theoretical claims कि the hypersonic glide vehicle could enable Beijing to launch an attack over the South Pole, while the US missile defense systems are generally aimed towards the northern route to counter missiles from China and Russia. So US के लिए बहुत कंसर्न की बात है कि जो चाइना का हाइपरसोनिक मिसाइल है वो पूरे ग्लोब का चक्कर लगाता है, ठीक है, और वो केपेबल है कि वो US पे फ्रॉम साउथ पोल अटैक कर सके, ठीक है, जिसके अगेंस्ट फिर US फिलहाल अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि जो यूएस ने अपने मिसाइल सिस्टम्स, एंटी मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय किए हुए हैं, दोज आर जनरली एम्ड टुवर्ड्स दी नदर्न रूट्स, वो नॉर्थ साइड से जो है वो एक्टिवेटेड हैं, दे कैन प्रोटेक्ट अटैक्स फ्रॉम दी नदर्न साइड, ठीक है, फ्रॉम दी नदर्न रूट टू काउंटर एनी मिसाइल अटैक्स फ्रॉम चाइना एंड रशिया। मतलब जो यूएस के पास जो करंटली वर्केबल ऑपरेशनल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एम्ड हैं टुवर्ड्स दी नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ से अगर कोई अटैक हो तो उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। जबकि अब जब
चाइना ने अपना ये हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है जो कि पूरे ग्लोब का चक्कर लगा सकता है और यूएस पर अटैक कर सकता है फ्रॉम साउथ पोल एज वेल, जहाँ से फिर यूएस के पास डिफेंड करने का फिलहाल जो है सिस्टम नहीं है, ठीक है। सो दिस हैज़ कंसर्न्ड यूएस obviously. And also recently Russia claimed to have successfully tested a hypersonic missile from open waters for the first time. So ये भी एक obviously यूएस के लिए बहुत तशवीशनाक बात है, बहुत परेशानी की बात है, ठीक है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि यूएस को ये भी बहुत कंसर्न है कि इस टेक्नोलॉजी के एक्वायर के बाद जो है चाइना कैन ऑल्सो रेजिस्ट यूएस इन द साउथ चाइना सी, क्योंकि दिस वुड बी अ बिगेस्ट थ्रेट टू यूएस सबमरीन्स इन द साउथ चाइना सी. Because although US submarines are deployed with anti-ballistic missile systems or the air defense systems to intercept missiles or rocket attacks, but the American defense system would prove futile if attacked with hypersonic missiles. Because जो anti-ballistic missile systems हैं US के पास या air defense system है, that is not capable to intercept or detect hypersonic missiles. So अगर जो है US उलझता है साउथ चाइना सी में, चाइना के साथ उलझता है, तो चाइना जो है उस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। और उससे ऑब्वियसली यूएस को नुकसान होगा, क्योंकि फिलहाल यूएस के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके. सो दीज वर सम मेजर कंसर्न्स ऑफ यूएसए, एंड ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू गेट दिस hypersonic missile technology as soon as possible, and they have recently also tested, but those tests have failed. But US is trying its best, so let's see how events unfold. So for now, that's all. I hope you understood the entire topic, the concept behind hypersonic missiles and its implications on US and for the region as well. So that's all for now. If it helped, then please share, like and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.